Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ahmad. Today we are going to discuss the topic of architectural design. Architectural design में क्या चीज़ें हैं? Architectural design basically एक important and core topic है हमारे subject के लिहाज से कि किस तरह से हमने देखना होता है कि हमारी different kind of routines सॉफ्टवेयर की किस तरह से रिलेट हुई होती हैं और आपस में इकट्ठे रहकर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रही होती हैं. सो हियर वी हैव द इंट्रोडक्शन. द सॉफ्टवेयर needs the architectural design to represent the design of software. IEEE defines the architectural design as the process of defining a collection of hardware and software components and their interfaces to establish the framework for the development of a computer system. The software that is built for computer-based systems can exhibit one of these many architectural styles. तो मैं इसको थोड़ा शॉर्टली डिस्कस करता जाऊंगा कि आर्किटेक्चरल डिजाइन की इंपॉर्टेंस क्या है. कि जब भी हम कोई चीज़ को बनाते हैं या किसी चीज़ को प्रैक्टिकली या फिजिकली बनाने जा रहे होते हैं तो उसका पहले आप एक थ्योरी वर्क परफॉर्म करते हो. हाउ दे विल गिव द फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज, टू द यूजर्स, टू द कस्टमर्स और टू द शॉपकीपर्स. लाइक जो भी हम चीज़ बना रहे हैं. अगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि आर्किटेक्चरल बेस एग्जाम्पल, जैसे कि हम ऑटोकैड के बारे में सुना होगा हमने, या अगर हम पढ़ें तो ऑटोकैड बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमें मैप की फंक्शनैलिटी को फुलफिल करने की हेल्प देता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स बनाते हैं लैंड्स के अकॉर्डिंग. कि या हम इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं सपोज कर सकते कि जी मेरे अभी माइंड में आया जी ये मेरी लैंड है और मैं जी नेक्स्ट मिनट में यहाँ पर इस चीज़ को बनाकर खड़ा कर दूँ. नहीं, we need to do the theoretical practical work on the paper and we have to draw the facilities, draw the sketches, draw the what we have the functionalities that are provided in the building. A set of components, for example a database computational modules that will perform a function required by the system. The system of correct connectors will help in coordinate communication and cooperation between the components. Conditions that how components can be integrated to form the system. Semantic model that help the designer to understand the overall properties of the system. Software architecture and design introduction में क्या चीज़ें हैं? The architecture of a system describes its major components, their relationships, structures, and how they interact with each other. Software architecture and design includes several contributory factors such as business strategy, quality attributes, human dynamics, design, and IT environment. जैसे कि यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि multiple kind of थिंग्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व होती हैं और उन्हीं की बेस पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा होता है, फुलफिल हो रहा होता है. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें हैं जी? रेफर्स टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग सच स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स. ईच स्ट्रक्चर कंप्राइजेस software elements, relations among them, and properties of both elements and relations. Okay, what we can the linking in the software and what we can the functionalities that would be provided to the users or the tasks that are done in the software practices. So ये थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्रिप्शन में एक एग्जांपल दी गई कि बेसिकली एक सिमुलेशन बेस्ड एग्जांपल है. मैं थोड़ा सा शॉर्टली इसको डिस्कस कर देता हूं कि आप सिमुलेशन की तरफ जा रहे हैं. सिमुलेशन एनवायरनमेंट एक वो एनवायरनमेंट है जिसमें आप फिजिकली किसी चीज को परफॉर्म नहीं करते बट आप वर्चुअली सपोज करते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स. लाइक अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्पेस शटल की एग्जांपल दी गई है कि अगर हमने स्पेस शटल का एक्सपीरियंस करना हो तो इट वुड बी कॉस्टली, it would contain many time and it would contain the resources, the environment in which we can able to perform this practical experience. But if we have the environment of simulation based system, then we are easy to perform, then we are allowed to perform in a shortly manner in a limited resources
कि आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहां आप देख रहे हैं एक डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। बेसिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है और इसके आपके सामने जी 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं या बेसिक कंपोनेंट्स कह लें कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, आईटी एनवायरनमेंट है, ह्यूमन डायनामिक्स है, बिजनेस स्ट्रेटजी है और डिजाइन है। तो ये सारा कुछ मिला के एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की आपके सामने रिप्रेजेंटेशन लाते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन में जी, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोवाइड्स अ डिजाइन प्लान दैट डिस्क्राइब्स द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम, हाउ दे फिट and work together to fulfill the requirements of the system. The objectives of having design plan are as follows: to negotiate system requirements and do set expectations with customers, marketing and management personnel, act as blueprint during the development process, guide the implementation task including detailed design, coding, integrated and testing. जैसे कि आपके सामने है, इसको हम थोड़ा सा अगर समराइज करके डिस्कस करें तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वी नीड द सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजियो है, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपका रैशनल रोज, आपके पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स बनाने में। जैसे कि आप देखें जो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक डायग्राम्स हैं, जैसे यूज केसेस हैं, यूएमएल है, क्लास डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है, आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस को वो शो करती है कि हाउ वी कैन एबल टू परफॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क इन दिस सॉफ्टवेयर, जो हमें डायग्रामेटिकल प्रोसेस से शो कर रहे होते हैं। सो ये एक आपके सामने मजीद एक डायग्राम है जिसमें बेसिक जो हमारे पास सेंटर में आपके सामने शो हो रहा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन आपका देखिएगा कि सबसे लिंकेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक डोमेन एनालिसिस से भी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस से भी, रिस्क एनालिसिस से भी। अब इसका जो आपस में लिंक हो रहा है सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर का, रिक्वायरमेंट डिजाइन, क्वालिटी का और मॉडिफिकेशन टू रिक्वायरमेंट का, लाइक जो इधर आपके पास लिंकिंग है। अगर हम हार्डवेयर के एंड पर देखें लिंकिंग, तो हार्डवेयर आर्किटेक्चर और मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द हार्डवेयर आर्किटेक्चर। अगर हम मजीद उसका अगर लास्ट स्टेप में जाएं तो लास्ट स्टेप में डिटेल्ड कोडिंग, डिजाइन और आपकी इंटीग्रेशन और मजीद जो आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, या जो भी आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, ये आपका इंप्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट में आता है। सो हियर वी हैव द गोल्स आर्किटेक्चर। देखते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में इसमें हमारे पास क्या मेंशन है। ये कुछ हमारे पास गोल्स हैं जो कि हमारे फोकस्ड होते हैं कि जब हम जो भी चीज बना रहे हैं तो उसमें हमने इन चीजों को फुलफिल करना है। तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए हम कुछ चेक्स भी लगा सकते हैं। हम चले मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। आप एक याहू का फॉर्म फिलअप करने गए या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म, अब उस पर आप फील्ड देखते हो लाइक यूजर नेम, पासवर्ड एंड फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम एंड सो ऑन। तो वहां पर आपका गोल क्या है या आपने वहां पर कौन सा गोल अचीव करना है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि आप उसको प्रॉपर फुलफिल करो। ऐसा ना हो कि आप उसको शॉर्टली फुलफिल कर दो या आप उसको फील्ड्स छोड़ के फिल कर दो। तो इट मस्ट बी कंसीडर कि आपकी कंसिडरेशन में होना चाहिए कि आपने जो भी चीज को एंटर करना है इट मस्ट बी फिल्ड। तो यहां पर जैसे बात हो रही है एक्सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, रियलाइज द यूज केसेस एंड सिनेरियोज, हैंडल बोथ फंक्शनल एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स एंड इंप्रूव एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस इन आइदर द ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। लाइक ये जनरली कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपके बेसिक फोकस में होते हैं आर्किटेक्चर को बनाते हुए। अगर हमको बिल्डिंग के हवाले से बात करें कि उसकी इमरजेंसी एग्जिट क्या है, उसकी प्रॉपर एंट्रेंस क्या है, उसकी रूम्स की एंट्रेंस क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, तो इसी तरह से आप जब एक सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हो या उसके आर्किटेक्चर के हवाले से बात करते हो तो उसमें भी आप इन सब मैटर्स को कंसीडर करते हो। So now we have the limitations. Software architecture is still an emerging discipline within software engineering. It has the following limitations: lack of tools and standardized ways to represent architecture, lack of analysis methods to predict whether architecture will result in an implementation that meets the requirements. Basic point है कि आपका सॉफ्टवेयर
क्या यूजर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ यू आर गोइंग टू डेवलप द ऑनलाइन कन्वर्टर फ्रॉम पीडीएफ टू वर्ड, फ्रॉम जेपीजी टू another, from bitmap to vector image, from like one form to another form, तो ये आपकी बेसिक लिमिटेशन है कि क्या जो आप ऑनलाइन वो चेकर बना रहे हो या कन्वर्टर बना रहे हो तो वो क्या यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रोल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एंड पुअर कम्युनिकेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और एक स्टेक होल्डर है, या हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जी कस्टमर है, तो हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, ये हमारा एक बेसिक लिमिटेशन के अंदर हमारा एक बेसिक चेक होना चाहिए। सो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीड हो रहा है रोल ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। देखते हैं जी इसके अंदर क्या है। Role of software architect में a software architect provides a solution that the technical team can create and design for the entire application. A software architecture should have expertise in the following areas. सबसे पहला आपके पास जो है वो डिजाइन एक्सपर्टीज है एंड द सेकंड इज डोमेन एक्सपर्टीज। डिजाइन एक्सपर्टीज में कि जो चीज आप बनाने जा रहे हो क्या उसके बारे में आपको नॉलेज है, आप जिस लैंग्वेज में काम करने जा रहे हो या जिस लैंग्वेज में आपको ये काम मिला है क्या आपके पास उस लैंग्वेज के डेवलपर्स हैं या नहीं है, तो ये है हमारी डिजाइन एक्सपर्टीज। अब इस डेवलपर के एंड पे आपकी कोडिंग, आपकी डिजाइनिंग, आपकी ईच एंड एवरीथिंग क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। देन हमारे पास है जी डोमेन एक्सपर्टीज कि उस डोमेन में एक तो आपने कितना आपको नॉलेज है, कितना आपने काम किया हुआ है, आप उस डोमेन को इजीली फुलफिल कर सकते हो या नहीं कर सकते। लाइक जैसे लिखा हुआ है जी एक्सपर्ट ऑन द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड एंड प्लान फॉर सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट का क्या काम होता है, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट जो कि आपके पास 3 to 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद उस स्टेज पर आता है तो वो आपको जस्ट प्रोवाइड करता है सॉल्यूशंस। तो इट वुड बी कि हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होगा जो हमें हमारी डोमेन की एक्सपर्टीज में हमें गाइड कर रहा होगा। सो टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज एंड मेथडोलॉजिकल एक्सपर्टीज ये भी बहुत दोनों इंपॉर्टेंट हैं। लाइक अगर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें कि जोन सी भी हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लाइक वी आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, वो भी आपके पास एक लैंग्वेज की नॉलेज को रखती हैं। लाइक विच काइंड ऑफ टूल्स वी आर गोइंग टू यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज टोटली रेलिवेंट टू द टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। अब उन टूल्स के अंदर आपने करना तो लैंग्वेज से काम है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज का भी और टूल्स का जिक्र इकट्ठे लिया। लेकिन हर टूल में आपका लाइक अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो हमारे पास एडिटर में आ जाती है। टूल्स में बात करते हैं जैसे कि हमारे पास ड्रीमवीवर है, नोटपैड है, जहां पर हम उसको टूल के तौर पर कहते हुए हम उसमें क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। मेथडोलॉजिकल में क्या चीज है जी, एक्सपर्ट ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज दैट मे बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग SDLC जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इस सब्जेक्ट में भी। या मतलब हमें ये कहना चाहिए कि हमारी बेसिक ये स्टेप्स हैं जो कि इस सब्जेक्ट में तो हैं ही हैं, हमें फर्दर सब्जेक्ट्स में भी, कंप्यूटर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में ये हमें इन्वॉल्व होते हुए क्या होते हैं, नजर आते हैं। तो बेसिकली SDLC के बारे में तो आपको पता ही है, लाइक वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स, लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिज़ाइन है, आपका नेगोशिएशन है, आपका उसमें इम्प्लीमेंटेशन है, आपका उसके अंदर टेस्टिंग है, आपकी उसकी मेंटेनेंस है, ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं जी उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाती है। लाइक चूज द एप्रोप्रिएट अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट दैट हेल्प्स द एंटायर टीम, कि आप मतलब कि जो आपकी एक मेथडोलॉजी होगी कि किस तरह से आपने अपनी डेवलपमेंट टीम से काम लेना है, उनकी एक्सपर्टीज को निकालना है कि कौन सा मेंबर किस एक्सपर्टीज में माहिर है और उसकी एक्सपर्टीज हमें यहाँ पर क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। So now we have the quality attributes. Quality is a measure of excellence or the state of being free from deficiencies or defects. Quality attributes are the system properties that are separate from the functionalities of the system. Quality में थोड़ा सा आसान लफ्जों में अगर हम इसको डिस्कस करें
तो हमने बेसिकली उसका क्वालिटी देखनी है कि क्या वो सही तरीके से हमारे पास परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में हमने डिस्कस किया था, इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारे पास उसकी क्वालिटी चेकर लगा हुआ है कि वो वैलिडेट तब होगा जब वो वेरिफिकेशन के स्टेप से क्या होगा, गुजरेगा। तो ये एक क्वालिटी का चेक भी हो सकता है कि हम जी यहां से आगे तब ही जा सकते हैं ये जब तक हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो। तो इस तरह से हम यूजर फ्रेंडली के लिहाज से भी उसकी क्वालिटी पे फोकस करते हैं। इंप्लीमेंटिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मेक्स इट इजियर टू डिफरेंशिएट अ गुड सिस्टम फॉर अ बैड वन। हाँ, अच्छे और बुरे में अगर हम डिफरेंस में जा रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर, लाइक ये एक सॉफ्टवेयर है और एक ही सॉफ्टवेयर है, इन दोनों सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ज्यादा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, ठीक है। किसको हम कहेंगे जी 3 स्टार है, किसको हम कहेंगे जी 4 स्टार है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, स्टैटिक क्वालिटी है और डायनामिक है। स्टैटिक मीन आप एक ही जगह पर रहते हुए एक चीज को चेक करोगे, डायनामिक आप ओवरऑल में जाकर हर उसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर लोगे, उसकी चेक करोगे कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, उसकी पैरामीटर्स क्या हैं, उसका सोर्स कोड क्या है, मतलब जगह जगह जाकर आप उसकी क्वालिटी को चेक करते हो कि सब उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये आपके पास एक डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा सोर्स है और डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लिहाज से भी एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के नाम से भी एग्जांपल दे सकते हैं, या हम इसको एक बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से भी एग्जांपल दे सकते हैं कि आपका एक डाटा स्टोर है और डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस हैं जो आपके सामने एक ही जगह पर क्या हो रही हैं, लिंक हो रही हैं। ये कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन है डीपली, लाइक थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू कर देता हूँ जी। दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड व्हेन इनपुट डाटा टू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट, यानी कि हम एक फॉर्म में डाटा को दे रहे हैं और हमें एक और फॉर्म में चाहिए, या हमें एक स्ट्रक्चर शो होता है कि किस तरह से, लाइक जो डायग्राम थी आपके पास लास्ट में, कि वो किस तरह से आपस में लिंकेज करेगी या उसको एक आपका डाटा को ट्रांसफर करेगी फ्रॉम वन सोर्स टू अदर सोर्स। और नेक्स्ट में अगर हम देखें जी, इफ द डाटा फ्लो degenerates into a single line of transforms then it is termed as batch sequential। कि आप एक फ्लो को बना रहे हो, लाइक एक क्यू बना रहे हो कि किस तरह से डाटा ने आपके सामने रन होना है इन द क्यू। यहाँ एक आपके सामने एक पाइपलाइनिंग का ये कॉन्सेप्ट है सारा, जिसमें हमारे पास फिल्टर है, पाइप्स हैं और कहीं 1 to लाइक 1 जा रहा है, 1 to many जा रहा है और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स हैं और वो रिटर्न लेकर आपके पास सामने आंसर ला रहा है। यहाँ पर हमने जो चीज़ को डिस्कस करना है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और लेयर्ड आर्किटेक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में हम बेसिकली यहाँ सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे, हमने जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है, जैसा आपने पास्ट में भी इन सब्जेक्ट्स में देखा कि ऊप बेस्ड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम आते हैं अपनी बात की तरफ। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम एनकैप्सुलेट्स डाटा एंड द ऑपरेशन that must be applied to manipulate the data. The coordination and communication between the components are established via the message passing. बेसिकली इसके अंदर डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। आसान सी एग्जांपल है कि आप जो सॉफ्टवेयर पे परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हो, क्या उसकी कोडिंग आपके सामने होती है? इट मीन्स वो एनकैप्सुलेशन के प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास है जी लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या है जी, अ नंबर ऑफ डिफरेंट लेयर्स आर डिफाइंड विद ईच लेयर परफॉर्मिंग अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। सो each layer will do some operations that becomes closer to machine instructions set progressively। मतलब कि जैसे कि अभी मैंने बात की कि लेयर्ड में आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह आपका क्या होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म होता है कि जी पहले ये देन ये देन ये। ऐसा नहीं कि आप 1 के बाद डायरेक्टली 5th पे आ जाओ या 5th के बाद अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो डायरेक्ट 3rd पे आ जाओ, नहीं 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इस तरह से आर्किटेक्चर क्या कहलाता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर। सो ये हमारे पास उसकी एक लास्ट में डायग्राम है जिसमें हमारे पास यूजर इंटरफेस लेयर है, यूटिलिटी है और कोर लेयर है। तो कोर लेयर के अपने टास्क्स हैं, यूटिलिटी के अपने टास्क्स हैं और यूजर इंटरफेस के अपने टास्क हैं। तो यूजर को ना कोर लेयर के टास्क
परफॉर्म होते हुए, या कोड नजर आ रहा होता है, न यूटिलिटी के ऑपरेशंस नजर आ रहे होते हैं, उसको जस्ट आपके सामने आउटपुट का जो रिजल्ट होता है वो नजर आता है। तो यहाँ तक जो था हमारा आज का टॉपिक था, जो कि कंप्लीट हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।